Hello, dear students. Today we'll learn about the rhyme scheme and the literary devices used in the poem Dust of Snow. You have read about the summary of this poem and the theme in my earlier videos, and today we shall discuss the rhyme scheme first and then the literary devices used in this poem. For this, first we'll see the text of the poem. The text is, "The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued." First, I'll tell you about the symbols used in this poem and what they represent. The major symbols used in this poem are crow and hemlock tree and dust of snow. So both crow and hemlock tree, these represent sorrow and sadness. As you are seeing in this picture, this hemlock tree is like a Christmas tree, and here's a picture of the hemlock tree that is covered with the dust of snow. So these two symbols, like the crow and hemlock tree, they represent sorrow and sadness. It means all the negative symbols that represents negativity. And the dust of snow only is the symbols that is used for a positive sign. It means it's used for happiness, joy, positivity. These things are related with dust of snow. Here we have the rhyme scheme of this poem. You are seeing here stanza 1 and stanza 2 of this poem. It's a short poem only in 2 stanzas of 4 lines each. So what's the rhyme scheme? Rhyme scheme refers to the rhyming pattern that is created at the end of lines of poetry. If the poem doesn't have a rhyme scheme, it is considered to be a free verse. जिस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं होती, इट मीन्स जो लास्ट के वर्ड्स जो हैं उनमें कोई राइमिंग पैटर्न नहीं होता, दैट इज नोन एज फ्री वर्स. सो इसमें आपने देखा कि फर्स्ट इसमें क्रो का यूज हुआ है. क्रो फर्स्ट लाइन के एंड पे क्या आता है? क्रो. देन द साउंड इज मी. These two are different sounds. Crow, me. Then there's snow. Snow rhyming with crow. And then is tree. Tree rhymes with me. So जो भी जैसे ये स्टेंजा है, इसमें फर्स्ट लाइन का जो है एंड वाला जो वर्ड होता है उसकी जो राइमिंग है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए. और अगर उसके बाद वाली राइमिंग वर्ड जो है अगर वो उससे राइम करता है नेक्स्ट लाइन का वर्ड तो हम उसके लिए भी ए रखेंगे. लेकिन अगर उसकी साउंड डिफरेंट है, जैसे क्रो मी की साउंड डिफरेंट है, तो इसको हम ए के बाद किससे डिनोट करेंगे? बी से. देन स्नो इज राइमिंग विद क्रो, तो इसको हम फिर से ए लिखेंगे इसके लिए. देन इज ट्री राइम्स विद मी, तो हम यूज करेंगे बी फॉर दिस. सो द राइमिंग पैटर्न इज ए बी. Similar is here. Heart, then mood. Both are different sounds. Heart, mood. Then is part. Part is rhyming with heart. A, B, A. Then rude. Rude is rhyming with mood. Then we use B for it. अगर हम पूरी पोएम का राइम स्कीम अगर हमसे पूछी जाती है तो फिर राइमिंग स्कीम क्या होगी? A, B. Then there is sound heart. Heart is not related with the sound crow or me. It's different. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? C. उसके बाद mood is also different. तो उसको किससे डिनोट करेंगे? D. अगर पूरी पोएम की पूछी जाती है, जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 स्टैंजा की जो है वो राइम स्कीम पूछी जाती है, तो उसमें हमने सिर्फ लास्ट के वर्ड्स देखने हैं. अगर वो सेम है लाइक क्रो, स्नो, तो दोनों के लिए हमने सेम ए रख लेना है. मी, ट्री, दोनों के लिए बी रख लेना है. अगर उसके बाद कोई एक लाइन है जिसकी राइम स्कीम उससे डिफरेंट है तो हम उसके लिए सी रख लेंगे. ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने राइम स्कीम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है. हार्ट, पार्ट, बोथ के लिए हम सेम साउंड रखेंगे, सेम वर्ड रखेंगे ए. मूड, रूड, तो दोनों के लिए सेम लेटर बी. सो इस तरह से हम किसी भी पोएम की किसी भी स्टैंजा की जो है राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करते हैं.
Then there are literary devices used in this poem. अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती है, जिनको हिंदी में जैसे अलंकार बोल देते हैं हम, कि अपनी भाषा को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए पोइट्स जो हैं वो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। इनको पोएटिक डिवाइसेस भी बोल देते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट है पोएम का, एंड देयर आई हैव रिटन सम लिटरेरी डिवाइसेस एग्जांपल्स। सो फर्स्ट डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज हुआ है? एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पे एलिट्रेशन क्या होती है? किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड की जो है, जब कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है तो वहाँ पे जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एस वर्ड की, एस लेटर की जो है यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। एंड सेव्ड सम पार्ट, कई बार ये होते हैं, ये कंसिस्टेंटली एक के बाद एक जो है हमें मिलते हैं, लेकिन कई बार वर्ड जो होते हैं वो पूरी लाइन में थोड़ी दूर दूर भी होते हैं, लेकिन एक लाइन में होते हैं। ठीक है, अगर कोई और लिटरेरी डिवाइसेस लाइन में ना यूज हुई हो देन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये एग्जाम्पल हैं एलिट्रेशन के। एंड सेव्ड सम पार्ट एंड हैज गिवन माई हार्ट। देन द अदर डिवाइस यूज हियर इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? द रिकरेंस ऑफ वावल साउंड। वावल साउंड कैसे रिपीटिशन है? जैसे शुक, डाउन, ऑन, मी। तो यहाँ पे ओ वावल साउंड की जो है वो रिपीटिशन है, शुक, डाउन, ऑन, मी। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एसोनेंस। देन देयर इज कॉन्सोनेंस। एसोनेंस मीन्स यहाँ पे वावल साउंड की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंस मीन्स द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब इस लाइन में जो है किस कॉन्सोनेंट की ज्यादा रिपीटिशन हो रही है? आपको क्लियर हो गया होगा, डी। ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो डी कॉन्सोनेंट जो है उसकी रिपीटिशन हो रही है। देन द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर इज कॉन्सोनेंस। देन वी हैव इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या है? आप देख रहे हो कि ये सारी टेक्स्ट जो है इस पोएम का, ये एंड में जाके एक फुल स्टॉप है, इसमें कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ, नॉट एनी कॉमा। तो वहां पे क्या है? इंजाममेंट, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज और रनिंग वन लाइन इनटू द नेक्स्ट विदाउट एनी पंक्चुएशन। जहाँ पे कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता और पोएम जो है वो, पोएट जो है वो एंड में जाके अपनी लाइन को खत्म कर देता है। इसको हम वन लाइन पोएम जो है वो भी बोल सकते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द पोएम। सो राइम स्कीम जैसे आप पढ़ चुके हैं, इफ वी सी द राइम स्कीम ऑफ द फुल पोएम देन इट्स ए बी सी डी, and if we see the rhyme scheme of each stanza then it's A B, then the other is A B. So stanza wise it's different and full poem's rhyme scheme is different. So I hope कि आप सबको ये poem जो है इसमें जो literary devices and the rhyme scheme जो यूज़ की गई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. For more such videos, stay tuned to this channel and thanks for watching this video.